Now you take down two questions are there. एक मैं करता हूँ, एक आप करो, देखिए. Okay. This is the question. A square pile group consisting of 9 piles. कितने पाइल्स है? 9 पाइल्स है. स्क्वायर ग्रुप है मतलब जितने रोज में रहेंगे उतने कॉलम में रहेंगे. और स्क्वायर पाइल ग्रुप consisting of 9 piles passes through a recently constructed soft deposits. Of course, ये सब इतना एक्सप्रेशन क्यों दे रहा? क्योंकि यहाँ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बढ़ रहा, इसलिए रिसेंटली जो सॉफ्ट सॉइल है उसकी वजह से जो ऊपर डिपॉजिट कर रहा था उसकी वजह से नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आ रहा है. A square pile group consisting of 9 piles passes through a recently constructed soft deposits with QU is equal to 50 kilonewton per meter square. QU is equal to 50 kilonewton per meter square and gamma is equal to 15 kilonewton per meter cube. A square pile group consisting of 9 piles passes through a recently constructed soft deposits with QU is equal to, QU दिया मतलब CU निकालो आप, CU is equal to QU by 2, that is 50 by 2 is equal to 25. So QU is equal to 50 kilonewton per meter square. लिख लो डाटा प्लीज, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको खुद करना है. तो लिख लो डाटा QU, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स N is equal to 9. QU is equal to 50 kilonewton per meter square. Therefore, CU is equal to 50 by 2, it is 25. And gamma is equal to, gamma of soil is 15 kilonewton per meter cube. Gamma is equal to 15 kilonewton per meter cube. The depth of deposit is Ln is equal to 3 meter. The depth of deposit is Ln is equal to 3 meter. मतलब जहां तक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, नया ऊपर वाला जो सॉइल है उसका लेंथ है 3 मीटर. The diameter of the pile is 30 centimeter. So it can be written as 0.3 meter also. The diameter of the pile is 30 centimeter and the piles are spaced 90 centimeters center to center. What is the negative skin friction load on the pile group? What is the negative skin friction load on the pile group? तो सारे डाटा लिख लो आप पहले. नंबर ऑफ पाइल्स N is equal to 9, CU is equal to 50 by 2, 25. लिख लो प्लीज. Gamma is equal to 15 kilonewton per meter cube and depth of deposit is Ln is equal to 3 meter. The diameter of the pile is 0.3 meter. The diameter of the pile is 0.3 meter and the piles are spaced at 90 centimeters center to center. So what is the negative skin friction load on the pile group? Why? What I am observing is most of the A section girls are absent. वैष्णवी एक रोल नंबर 1 आती, रोल नंबर 2 से शुरू हो गया. प्राजक्ता काले भी कभी कभी ने आई नहीं आपको. 2 से लेके पूरा 38 तक. पूनम मैत्रे, नंदिता, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स. तुम लोग बताता हूं मैं अब तुम लोगों को मार्क्स कितने भेजता हूं. देखो तुम लोगों के जो क्लास को आए रेगुलर है उनको ही मार्क्स देता हूं. देन यू विल कम टू नो. ओके, सो 9 पाइल्स आर देयर, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस. तो सबसे पहले हमको ग्रुप में करना है. तो ग्रुप के लिए पहले डाटा लिख लो आप. CU is equal to QU by 2, that is 50 by 2, that is 50 by 2 is equal to 25 kilonewton per meter square. ये तो मैं आपको बताया. Gamma is 15 kilonewton per meter cube. LC is equal to 3 meter. LC is equal to 3 meter and S is equal to 0.9 meter. 0.9 meter means S is equal to, देखो इस एंड से इस एंड तक कितना. तो पहले आप इस सेंटर से इस सेंटर तक एक स्पेसिंग, इस सेंटर से इस सेंटर तक दूसरा स्पेसिंग. तो कितने स्पेसिंग हो गए? 2 स्पेसिंग प्लस इधर आधा डायमीटर, इधर आधा डायमीटर, एक डायमीटर. सो टोटल एंड टू एंड विड्थ B is equal to 2S plus D. It is 2S plus D. That is 2 into S is 0.9 spacing
plus 0.3, B is equal to 2.1 meter, 2.1 meter width. Akanksha Chauhan, Nazneen Mulani. I haven't seen you people, but from the 1 year I am teaching you, I remember everybody's names. मैं आपके बार आपको मार्क्स ही नहीं देता, तुम बोलेंगे मार्क्स लेके क्या करना है सर हमको, हाँ उसको भी तैयार है तुम लोग, हर चीज के लिए बेशर्म हो गए. CU is equal to QU by 2, that is 25. हाँ, B is equal to 2S. It's very simple. देखो गौरव, मुझे यहाँ क्या होना है, हम 1 2 3 यहाँ पर हम 3 पाइल्स लिए. अच्छा 3 क्यों लिए, टोटल 9 है तो कॉलम में 3 रोज में 3 हो गया. बी क्या है, बी मतलब इस एंड से इस एंड तक का लेंथ. बी मतलब इस पाइल के एंड से इस पाइल का एंड. उसके लिए स्पेसिंग दिया सेंटर टू सेंटर 2 पाइल्स में, मतलब इसके पाइल के सेंटर में इसके पाइल के सेंटर में एक स्पेसिंग है. फिर इस पाइल में कितने स्पेसिंग है, दूसरा स्पेसिंग है. मतलब सेंटर टू सेंटर जो है वो 2s हो गया. मतलब इधर आधा डायमीटर बच गया, इधर आधा डायमीटर बच गया, तो d/2 प्लस d/2 d हो गया. तो एंड टू एंड अब क्या हो गया, 2s प्लस d है. समझ में. सपोज करो 4 पाइल्स रहते, जबकि ऐसा है 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होता, सेंटर टू सेंटर, यहाँ पर देखिए सेंटर टू सेंटर 1 स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग, 3 स्पेसिंग. सो 3 इंटू एस प्लस इधर आधा डायमीटर, इधर आधा डायमीटर. सो 3s प्लस डी यहाँ होता, 2s प्लस डी वहां होता. आया समझ में. सेम डिजाइन में भी हम सेम करे थे. तो ये आ गया आपको b इज इक्वल टू 2s प्लस डी. 9 रहे, 4 रहे तो 3s प्लस डी, 5 रहे बोल तो 3s प्लस डी, जितने हैं उतने. अब आप ये लेंथ भी लेना चाहते तो 2s प्लस डी आता स्क्वायर रहने से. बट इट ओके. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम. तो ये सारा डाटा है, प्लीज लिख लो क्योंकि अगला प्रॉब्लम आपको खुद करना है. अगला प्रॉब्लम आपको खुद करना है. और याद रखो सिलेबस खत्म, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत कुछ बच भी गया तो मैं रिवाइज क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं. आपके एग्जाम का डेट नहीं आया, उसको अटेंडेंस तो इतना कंपलसरी करेंगे तब आपको मालूम होता. और उसमें मैं सिर्फ गेट के क्लासेस, गेट के क्वेश्चंस लूंगा, गेट के बारे में बताते जाऊंगा. गेट के टाइप से हम प्रिपेयर करेंगे. 22 टॉपिक्स है गेट के लिए जियोटेक में. पूरे टॉपिक एटलीस्ट डेली एक टॉपिक भी करें तो 20-22 दिन में हम खत्म करेंगे. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको, नोट्स भी हो सके तो दूंगा मैं. एवरीथिंग वी विल डू आफ्टर दिस. हो गया. तो डाटा लिख लिए. हाँ, हमको क्या करना है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकालना है इस ग्रुप फाइल का. तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि 2 मेथड्स यूज करो. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के लिए 2 मेथड्स यूज करो. एक n इंटू FN, दूसरा फॉर्मूले वाला, जो दोनों में से बढ़कर है हम उसको देंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लोड ऑन ग्रुप इज मैक्सिमम ऑफ, दिस इज द फर्स्ट वन, that is FNG, that is n into FN, negative skin friction of single pile into number of piles. Or negative skin friction of group pile is also given by CuLCPG, CuLCPG plus gamma LCAG plus gamma LCAG. तो ये 2 फॉर्मूले हैं. हम ये 2 फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और दोनों तरीके से निकालेंगे. तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर ओरीमीटर कैसा निकालना मैं आपको बताता हूँ आपको. ओके. सो नाउ एक बार दोनों तरीके से निकालेंगे. तो दोनों तरीके से निकाल के जो बड़ा है वो लेंगे. देखिए कुछ फर्क नहीं है. यहाँ पर हम सिंगल पाइल का नेगेटिव फ्रिक्शन निकालते, नंबर ऑफ पाइल्स 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करते. यहाँ पर ग्रुप का निकालते, तो ये सिंगल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. या ग्रुप का नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकालेंगे और इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू है that we will take the value which is on higher side. No, that value we are going to take. That value we are going to take. Got it? So now FNG is equal to n into FN. FNG is equal to n into FN. And n तो मालूम है आपको
एफ एन कैसा निकालते? एफ एन का फॉर्मूला मैं बताया था आपको, ए एस इंटू अल्फा इंटू सी, ए एस इंटू अल्फा इंटू सी। हियर ए एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सिंगल पाइल, और सिंगल पाइल सिलिंड्रिकल है, इसलिए इसका सरफेस एरिया बनता पाई इंटू डी इंटू एल। तो 9 नंबर ऑफ पाइल्स है, एस इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एल। पाई मालूम है आपको, डायमीटर ऑफ द पाइल इज 3.3 सेंटीमीटर, लेंथ में 3 लिया, 3 इसीलिए लिया क्योंकि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है, जो स्ट्रैटम है नया सॉइल, वो 3 मीटर तक की है, इसलिए 3 लिया। और C इज इक्वल टू क्यू यू 2, दैट इज 50/2 इज 25। सो एफ एन जी इज इक्वल टू 9 इंटू पाई इंटू डी इंटू एल इंटू 25। इसको सिंप्लीफाई करो आप, you will get 636.17 किलो न्यूटन। दिस इज व्हेन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑफ एक सिंगल पाइल निकालो और सिंगल पाइल को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ पाइल से, you will get 636.17 किलो न्यूटन, 636.17 किलो न्यूटन। ठीक है, फॉर द आइडिया, कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? हाँ, उसके बाद एफ एन जी इज इक्वल टू, यस एवरीबॉडी, समबडी इज हैविंग डाउट? हाँ, अल्फा वैल्यू सी ओके, अल्फा वैल्यू ये आपको जनरली दिया हुआ रहता है, पाई इंटू डी इंटू एल दिया, यहाँ पर पाई डी एल दिया, सी दिया, अल्फा का वैल्यू 1 दिया। तो एक क्वेश्चन में मेंशन करता, नहीं भी मेंशन किया तो आप 1 ले लो, नहीं दिया तो आप अदर ले लो। जो सॉफ्ट क्ले रहता है ना, सॉफ्ट स्पेशली न्यू, उसके लिए एडिशन फैक्टर हमेशा 1 ही रहता, और ग्रुप में हम हमेशा सॉफ्ट लेके 1 ही लेते जाते, नहीं मेंशन करा तो ले लो। डिजाइन में भी हम करे थे ना, जब डिजाइन करे थे तभी भी एडिशन फैक्टर निकाले थे। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 हियर इफ इट इज नॉट गिवन। अगर से दिया हुआ है तो जितना दिया उतना आप ले लो, जनरली 0.7 0.8 डीएसओ रहता, जो डीएसओ है वो ले लो, नहीं दिया तो आप ऐसे ले लो। So got it? So n is 9, as is pi into d into l। ये सरफेस एरिया कैसा निकाले मालूम है नहीं आपको? pi into d into l, pi into d circumference into length is 3 मीटर के लिए, pi into d into l, c is 25, alpha is 1 here, please remember alpha is 1 here, you simplify this, you will get 636.17 kilo Newton, 636.17 kilo Newton. So now this is by considering single pile and then multiply by the number of piles, then multiplied by the number of piles. Value of alpha, value of pi, अब ये भी नहीं मालूम मेरे को भी नहीं मालूम। अब वैल्यू ऑफ पाई क्या है, इट इज अप टू यू। पाई का वैल्यू क्या रहता? 3.142, नॉट टेकन। ओके बेटा, आप करके देखो, मैं डायरेक्ट किया बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर रखाऊंगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 9 इंटू पाई इंटू डी इंटू एल इंटू 25 करो, ये आंसर आता क्या नहीं देखो। कभी कभी मैं डायरेक्ट बुक में देख के लिखता हूँ या मैं भूल जाता हूँ, तो वेदर इट इज राइट और नॉट देखो प्लीज। देखो करेक्ट है नहीं, करो कैलकुलेशन, कुछ इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, पाई का वैल्यू लिया ना हो ना 3.142 बेटा।
ठीक है। छोड़ो, मैं ये स्टेप में आप क्या बोल रहे कि पाई का वैल्यू नहीं लिया सर, ऐसा नहीं है, ये लिया होगा तभी इतना आया। आप 3.142 लेके करो। ओके, नाउ कमिंग टू इन ग्रुप। ग्रुप में देखिए, ग्रुप का फॉर्मूला यहाँ पर है CuLCPg। अब सवाल उठता है यहाँ पर, Cu तो 25 है, कोहेजन ऊपर और साइड में सेम है, तो यहाँ Cu का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, और दूसरा आता Cu के बाद क्या है, लेंथ। लेंथ तो 3 है, तो 3 लिया। अब यहाँ Pg 8.4 लिया। Pg 8.4 कैसा लिया, पेरीमीटर ऑफ द ग्रुप। पेरीमीटर ऑफ द ग्रुप मतलब ये साइड से जो ग्रुप आप बनाए, इसका टोटल पेरीमीटर कितना है। देखिए, एक साइड जो है इसका हम निकाले 2.1, तो ऐसे कितने साइड्स है, ऐसा भी 2.1, ऐसा भी 2.1, ऐसा 2.1, ऐसा 2.1, so it is 4 into 2.1. It is 4 into 2.1. Okay, Sonali, yes, everybody got it. Thank you, beta. So now 8.4. So here this is 8.4. PG कैसा निकाला गौरव, मालूम हुआ? पेरीमीटर ग्रुप में रहे जब कैसा निकालना, तो दिस इज 8.4 प्लस गामा इंटू, गामा इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल गिवन, एलसी इज 3 अगेन, क्योंकि 3 मीटर तक की हमको देखना है। एजी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ग्रुप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ग्रुप। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ग्रुप कैसा निकाला, देखो ये क्रॉस सेक्शन है आपका ग्रुप का, तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कैसा निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2.1 इंटू 2.1, एंड 2.1 इंटू 2.1 इज 4.41। देखिए यहाँ पीजी भी निकाला और एजी भी निकाला, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया सब। 25 इंटू 3 इंटू 8.4 प्लस 15 इंटू 3 इंटू 4.41, एंड यू विल गेट FNG इज इक्वल टू 828.45। और ये दोनों में जो बड़ा है वैल्यू वो आपको लेना है, जो वही आपको लेना है। दिस इज द नेगेटिव स्किन फ्रैक्शन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इन ग्रुप। एंड रिमेंबर, गेट में क्वेश्चन ये पूछे सो है, गेट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे सो है। यस, एनी डाउट हियर इन दिस प्रॉब्लम? तो एक प्रॉब्लम आपको करना है अब, ये टेक डाउन दिस क्वेश्चन। A square pile group of 16 piles, ये 9 था, यहाँ 16 है, penetrates through a field soil up to 3 meter, वहां भी 3 मीटर डेप्थ था, यहाँ भी 3 मीटर है। डाटा लिख लो प्लीज। The pile diameter, so for if you take the value of alpha, then FNG is equal to 212. This one, for this one it is 212, so then some value should have been given here. देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, Cu इंटू Cu FC LC PG प्लस गामा इंटू LC इंटू AG। सो Cu 25 इंटू 3 इंटू 8, 75 इंटू 8। कैसा आता बेटा? नहीं आता, 828 आता, करेक्ट है। यू चेक इट वन सेकंड। देखो कहाँ गलती हो गई, या मेरी गलती है आपकी गलती है। देखो कभी कभी मैं बुक का देख के डायरेक्ट लिख देता हूँ विदाउट थिंकिंग, तो मेरी भी गलतियां हो सकते हैं, फिर भी आप करके देखो। नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, आपको आइडिया आता। ओके प्रियंका गॉट इट, ओके टू चेक इट। सो 828.45। नाउ कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम करो बेटा, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाता। वो सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डाटा चेंज किया हूँ। इस सिविल सर्विसेज में पूछा 2002 में, और सेम प्रॉब्लम रिसेंट गेट एग्जाम में पूछा। ओके और गेट के क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम, जब मैं रिवीजन क्लासेस शुरू करूंगा तो सिर्फ गेट के क्वेश्चंस करते जाएंगे। अ स्क्वायर पाइल ग्रुप ऑफ 16 पाइल्स पेनिट्रेट थ्रू अ filled tip soil of 3 meter depth. A square pile group of 16 piles, 16 पाइल है तो क्लियरली दिया यहाँ पर। पाइल डायमीटर इज 250 mm, डायमीटर इज 250 mm, 0.250। पाइल स्पेसिंग इज 0.75 मीटर, ये भी सेम है शायद मेरे ख्याल से। यूनिट कोहेजन ऑफ द मटेरियल इज 18 किलो न्यूटन
per meter square and unit weight. देखिए unit cohesion means C directly दिया, QU नहीं दिया. Unit cohesion is C is 18 kilonewton per meter square and unit weight of the soil is 15 kilonewton per meter cube. 15 kilonewton per meter cube. Draw plan and section elevations of the pile group and compute the negative skin friction in the group. प्लान बनाने का क्या है, तो बहुत इजी है. 16 पाइल्स है, इस तरह चार चार एक ग्रुप में रखो. एक एक का स्पेसिंग 0.75 है. सो 3 into 0.75 प्लस एक डायमीटर ऐड करो, तो ये एंड टू एंड 2.5 बनता. तो 2.5 to 2.5 AG 6.25 बनता और PG बनता 4 into 2.5. PG क्या बनता, 4 into 2.5. फोर इंटू 2.5. बस बाकी का सब सेम है, प्लीज करो. ये डायग्राम बनाओ बोला रहा है सानू, या आप डायग्राम भी बनाना सीखो. करिए सब तो आप एमसीक्यू में पूछता नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए. बहुत अच्छा डायग्राम बनाना. ये टॉप से है, ये सेक्शन है. सेक्शन में देखो चार पाइल्स कैसे दिख रहे, या 3 मीटर तक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है. हाँ ये न्यूली सॉइल है, स्पेसिंग है, ये आप बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है. और ये तो मैं आपको यहाँ बताया सो. ठीक है, तो दोनों सेक्शन भी पूछा फिगर, और फिगर पूछ के आप ये फॉर्मूले यूज करो, एन इंटू एफ एन, और एफ एन का ये फॉर्मूला यूज करो, और ये एफ एन जी के लिए करो. करके मुझे बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. 5 minutes टाइम आई विल गिव यू, प्लीज डू इट. फाइव मिनट्स टाइम आई विल गिव. Somebody did, let me see the answer. Mahesh is did, very good Mahesh. 678 FNG पहला वाला बेटा, क्या मतलब सेकंड वाला है. 678.58. okay, let me see others. करो प्लीज. हाँ एक 821 आया, एक तो दूसरा वाला ले लो आंसर. आंसर सेकंड इज 821 इज द राइट महेश, वेरी गुड. आई थिंक महेश हैज डिड इट, इट इज राइट आल्सो. सभी लोग करो प्लीज.
महेश डिड, अदर्स आल्सो डू प्लीज। फॉर्मूले सामने दिया हूं मैं, डाटा दिए सो है, और क्या होना आपको, करो जल्दी। Okay, Shital, one you got. Second also you do better. Then you take the higher value. देखिए, हाँ अमोल, वाई सी यू हाफ ऑफ द क्यू, देखिए वहां क्या दिया, यहाँ क्या दिया। अमोल यहाँ पर डायरेक्ट कोहेजन दिया, वहां पर कोहेजन नहीं दिया, वहां अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया। इस बात को नोट करो, ये बहुत बार गलती है। यस गौरव, यू आर राइट। अमोल पवार, देखिए सी यू जो है कोहेजन बोल के डायरेक्ट दिया, तो जो है वही ले लो, लेकिन अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोला, जो वैल्यू देता उसका हाफ लेना, बिकॉज ये आप शेयर स्ट्रेंथ डिटेल में नहीं पढ़े लास्ट टाइम, इसलिए नहीं मालूम। सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाय 2, क्यू यू बाय 2, व्हाट इट। हाँ, और दूसरा कोई पूछे पीजी के लिए 4 कहां से लिया सर, देखिए पीजी मतलब क्या है, पीजी मतलब देखो, पीजी मतलब पेरीमीटर। अब ये ग्रुप का पेरीमीटर मतलब ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक। कितने हो गए, 4 हो गए नहीं, एक विड्थ निकालो, 2 3 और 4, 4 इंटू 2.5, 10 हो जाता। आया समझ में। हाँ 678.5। ओके, सेकंड भी करो बेटा, सेकंड आल्सो यू डू। Okay, now I will take the attendance. And you do it, solve it. You take the attendance. Okay, Sheetal, right, beta. So this completes the negative skin friction. उसके बाद अंडररिम्ड पाइल्स एक है, देखता हूं मैं, हो सके तो कल एक दिन पाइल्स लेता हूं, या आपके टेस्ट नहीं लिया मैं, हो सके तो कल टेस्ट लेता हूं। एंड आफ्टर दिस आई विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर, शीट पाइल वॉल्स। शीट पाइल वॉल्स और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स अगर से मैं 5-6 पीरियड में खत्म कर दिया तो समझो सिलेबस खत्म हो गया। बाकी के सब थ्योरी है, दो चैप्टर, वो मैं जल्दी खत्म करूंगा। 20 तक मैं सिलेबस खत्म करूंगा, फिर मैं गेट के क्लासेस और रिवीजन शुरू करूंगा। शीतल बहिरवड़े B2, A1 वैष्णवी भोसले, 1 के बाद ये पूरे बीच वाले सब, ये निशा ढोले वोले माने जो बीच में है, तेजश्री, मोनाली, सब एब्सेंट रह रहे, मैं सबको बताता हूँ, ठहरो तुमको। उसके बाद A1 के बाद भाग्यश्री भोंग, डायरेक्ट 12 ही आती। 13 पूजा इज रेगुलर, मेघा रेगुलर, श्रद्धा चौहान, उसके बाद शीतल ताटे, शीतल के बाद प्रेरणा जाधव, ये मेरे प्रोजेक्ट की लड़कियां तो आते नहीं। 35 दिव्या, श्रद्धा सुरव से आई आज, गौरव टांग 47, उसके बाद प्रीतिश 53, 55 स्वप्नील, B8 प्रगति, B8 प्रगति, क्षितिजा 9, और उसके बाद क्षितिजा के बाद ऐश्वर्या पाटिल, ऐश्वर्या के बाद सोनाली पाटिल, सोनाली के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद ऐश्वर्या पुकाले, उसके बाद सूर्य से प्रतीक्षा 19, और सूरज से प्रतीक्षा 19, B27 सूरज, 61 कटप्पा, और 63 अमोल, 65 महेश साळुंके, B21 गणेश,
और B12 प्रियंका पुला हो गया, सोहम 29, माधुरी साकरे A23, what is the formula for of negative skin friction of pile group for sand, that I will take. ओके वो भी सही है। तो सैंड के लिए जनरली क्या करते हैं मालूम है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज क्ले का तो करो आप, तो सैंड के लिए हम कैसा करेंगे ग्रुप नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं। ओके नाइस क्वेश्चन, और कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। फाइल अच्छी तरह कर लो, गेट में बहुत काम को आता देखो। If you have any doubts, you can ask. You complete this chapter, I mean problem. So देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू सी इंटू पी इंटू एल सी, सो 16 लिया, अल्फा 1 ही लिया मेरे ख्याल से। तो एफ एन जी इसका आया 271.3 एक आया, और फॉर ग्रुप के लिए 821 आया। अल्फा यहाँ 0.4 अज्यूम कर, हम लोग 1 करे थे तो यहाँ 0.4 अज्यूम करो बोल रहा। खैर ये तो अपने ऊपर है, लेकिन जनरली देता हूं, नहीं दिया तो आप 1 करो, 0.4 वो अज्यूम मत करो। खैर आंसर सेकेंड टाइप से करते ही 821.25 is the answer, and most of you got it. Most of you got it the answer. Most of you got it the answer. Okay, so this completes the pile almost all. अब इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा। अंडर रिम्ड पाइल्स एक है, उसके बाद वो पाइल लोड टेस्ट एक है, पाइल लोड टेस्ट, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। उसके बाद कुछ पेनिट्रेशन के प्रॉब्लम्स है, तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जल्दी भी कभी भी खत्म कर सकता हूँ मैं उतना टॉपिक। तो पाइल्स आप याद रखो, व्हाट इज पाइल, व्हाई इट इज नीडेड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन, आप अच्छी तरह याद रखो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन B23 B65, तो क्लासिफिकेशन के बाद कैसा फेल होता है पाइल, कैसा फेल होता है आपको मालूम होना चाहिए। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के पाइल के चारों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बट इट चारों फॉर्मूले, स्टैटिक फॉर्मूले, डायनामिक फॉर्मूले। तो उसके बाद डायनामिक फॉर्मूला भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैटिक फॉर्मूला भी करें। स्टैटिक में भी फिर क्ले के लिए अलग, सैंड के लिए अलग, फिर सिंगल अलग, ग्रुप में अलग, वो पूरा डिजाइन आप सीख लो। उसके बाद पाइल फेल्स रूल बताया था मैं आपको, ग्रुप में एफिशिएंसी कैसा निकालना पाइल ग्रुप में रहे जब। उसके बाद कॉन्वर्स लेबर फॉर्मूला बताया था, वो भी देखो एमसीक्यू में पूछ सकता। और उसके बाद नेगेटिव, आज क्या बताया मैं आपको, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या है और ये कैसा कैसा निकालना, फाइंड आउट करना। एक दो प्रॉब्लम भी कराया मैं आपको, जब टाइम मिलता तो बाद में और देखेंगे। सो कल हम लोग 2 पीरियड है, तो कल हम एक नए चैप्टर को जाएंगे, कल नए चैप्टर को जाएंगे। गॉट इट? ओके, नाउ यू कैन गो, हैव अ नाइस डे, यू कैन गो। जिसका अटेंडेंस है अभी 2-3 मिनट वेट करता हूं मैं, अटेंडेंस दे देता हूं जो कोई आए तो बाकी के लोग जा सकते जिसका अटेंडेंस हो गया। Madhuri Sakre given A23, B12 Priyanka Pula also given.
B6, B29 given, B27 we given, B6 I will give now, Vaishnavi. B6 given, B27 given, A14 also given. Mega Yadav तो रेगुलर है तुम लोग दिए से B12, A23, B21 सभी हो गए सर. A14, B27, that's all. Yes, Samarth given.